Once again, welcome back, my dear student of Standard Ninth. And today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is chapter number 20, Disaster Management. And this is part 1 of 6. Friends, you hear it right, it's part 1 of 6. Big chapter, but very interesting chapter, which gives you practical knowledge and of course lots of explanation is there. So that is why I'm going to cover this chapter into 6 parts. So lots of things to do, lots of things we are going to learn. So let's get started. Okay, so as you can see, chapter number 20, disaster management, is given to you. So friends, without wasting any time, let me go through the first paragraph and then I will come to the explanation part. Okay. A disaster may be natural or man induced, may be uh, catastrophic or diastrophic, may or have originate in the interior of the earth or in atmosphere. It is felt over the extensive area of the earth and also resulted in devastation. If we examine few phenomena, it will be clear that disaster damage lives and properties to a great extent. Some events like volcanic eruption, earthquake, tsunami, etc. are the collective result of the both natural as well as man-induced act. Some events bring pre-planned devastation and destruction. Example: atomic attack by US bombers over Hiroshima and Nagasaki cities of Japan in the Second World War, whereas some events are result into the human negligence and mistakes. Example: Bhopal gas tragedy, Karboil atomic disaster of Russia. So friends, what they are trying to say is that देखो फ्रेंड्स, डिजास्टर इंसान की लाइफ में होते रहते हैं. कई बार नेचुरली होती हैं, कई बार इंसान से भी होती हैं. कुछ डिजास्टर ऐसे हैं जो अर्थ के नीचे, अर्थ के सरफेस से नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ होते हैं. तो कुछ ओपन एटमॉस्फेयर में भी डिजास्टर देखे गए हैं. डिजास्टर का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, डिवास्टेशन होता है. अगर हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से समझे ना, तो जब भी डिजास्टर होता है बहुत सारे लोगों की जान जाती है, लाइव्स ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा होता है. इसके अलावा करोड़ ऑफ रुपीज़ की प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो जाती है. कुछ डिजास्टर तो ऐसे हैं कि जहाँ पे इंसान की गलती भी होती है और नेचर भी अपना रूप तो दिखाता ही है. मीन्स हम लोग नेचर से बड़े नहीं हैं, इस बात को हमको समझना होगा. एंड यही नहीं, जो डिजास्टर हैं वो इंसान खुद बनाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान के 2 सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बम गिराए थे. ओके. एंड 2,25,000 लोगों की डेथ हो गई थी. तो ये तो इंसानों ने किया है. कई बार इंसान ना चाहते हुए भी गलती से ये सब चीज़ें हो जाती हैं. कोई इंसानी गलती, ह्यूमन नेग्लिजेंस या मिस्टेक्स भी उसके पीछे होती हैं. एग्जाम्पल: भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड कार्बोल एटॉमिक डिजास्टर ऑफ यूएस रसिया. ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें हुआ क्या था. ओके फ्रेंड्स, सो डिजास्टर तो हमने काफ़ी देख लिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ डिजास्टर. ओके, सो लेट मी गो थ्रू इट. We are aware of the risk of disaster. To decide the strategy of relief work, it is necessary to know the reason and responsible situation. It is important to know this with the reference to overall preparation of relief work. Experts of disaster management have divided the disaster into 2 categories. तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम लोग रिस्क ऑफ द डिजास्टर चेक करें तो डिजास्टर के बाद जो काम होता है उसको हम लोग रिलीफ वर्क कहते हैं. ठीक है. एंड इसके अलावा कभी कुछ कारण भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ओवरऑल अगर हम लोग देखने जाए ना, तो डिजास्टर के बाद रिलीफ वर्क आता है. एंड डिजास्टर को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 कैटेगरीज में. ओके. नंबर 1,
Natural disaster. These include flood, cyclone, tsunami, drought, earthquake, volcano, forest fire, etc. For this, a forecast is possible for flood, cyclone, tsunami and drought. देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे टाइप के डिजास्टर होते हैं। इसमें से ये लोग ये कह रहे हैं कि जो फ्लड है, ठीक है, साइक्लोन है, सुनामी है, ड्रॉट है, इनको तो हम लोग आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये भी आने वाले हैं और ये आ जाएंगे तो हमको पता भी चल जाता है। लेकिन while it is not possible to forecast earthquake, volcanic eruption एंड फॉरेस्ट फायर, इनको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो सेकेंड टाइप्स के जो डिजास्टर होते हैं वो होते हैं मैन इंड्यूस्ड डिजास्टर। हियर फायर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, राइट्स आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं पे बॉम्ब एक्सप्लोजन भी हो सकता है, या फिर राइट्स भी होते हैं जो कॉमन है दो रिलीजन्स के बीच में। नाउ नेचुरल डिजास्टर में सबसे फर्स्ट आता है फ्लड। पर फ्लड होता कैसा है, सो यू कैन सी ओवर हियर। एक स्पेसिफिक एरिया जो पानी में डूब जाता है, वो एरिया में कंटिन्यूसली रेनफॉल होती रहती है, तो वो एरिया पानी में डूबा ही रहता है। एंड सिटीज़ में कुछ ऐसी हालत होती है, स्पेशली लो लाइंग एरिया जो होते हैं रिवर के पास में, वहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिलती है। एंड एज यूजुअल फिर हमारे आर्मी वाले, पुलिस वाले बोट्स ला के इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। ओके, सो आई आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है कि क्या क्या होता है फ्लड में। नाउ जनरली व्हाट हैपन, सपोज आप अपने घर के बाथरूम में गए, सपोज करते हैं, एंड वहाँ पर आपने बकेट में पानी भरना शुरू किया। सिंस बकेट की पानी की कैपेसिटी होती है, इट माई बी 20 लीटर, 15 लीटर, जो भी आपकी बकेट की साइज़ है, एंड आप उसमें पानी का टैप ऑन करते हो, तो वो अपनी लिमिट तक पानी लेगा। उसके बाद पानी क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, है ना। तो जो बकेट है वो हमारी रिवर्स है, उसके अंदर भी पानी स्टोर करने की एक कैपेसिटी है, ठीक है। जो टैप में से पानी आ रहा है डेट इज़ कॉल्ड रेनफॉल। एंड वो जो रेनफॉल है, अगर वो अमाउंट से ज़्यादा आती है तो पानी फिर ओवरफ्लो करेगा। नदी का पानी जब ओवरफ्लो करता है तो वो रेजिडेंशियल एरिया में आता है, और अगर बरसात नहीं रुकती है तो बहुत दिनों तक वो एरिया पानी में डूबे ही रहते हैं। अभी जस्ट आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखे हैं। ओके, सिचुएशन तो और वर्स्ट होगी अगर बरसात नहीं रुकती है तो। एंड इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों की जान भी जाती है, ऑल डेट, ठीक है। सो चलो पहले शुरू करते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही आपको भी मैं फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा आपको। बाय फ्लड वी जनरली मीन एन एक्सटेंसिव land area remaining submerged under water continuously for several days. People associated flood with the river when river water overflow its bank and nearby land area comes under water. Flood is a natural event. It is result continuously of heavy rainfall. Flood become dangerous when the construction carried out ignoring human activity, drainage pattern, slope of the land, etc. damage lives and property on a large scale. और ये बात भी सही है फ्रेंड्स कि रिवर के आसपास के एरियाज में कंस्ट्रक्शन तो करना ही नहीं चाहिए। याद करो 2013 में जब केदारनाथ में फ्लड आया था, आसपास के बहुत सारी बिल्डिंग्स बह गई थी। ओके, क्यों बह गई थी, रीजन्स, क्योंकि उन लोगों को समझना चाहिए कि रिवर के आसपास कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। ओके, वो बात अलग है। ताजमहल बनाया है, ताजमहल को इस तरह से इंजीनियरिंग करके डिज़ाइन किया गया है, दे हैव प्रेडिक्ट द हैवी टू हैवी फ्लड ऑल्सो, कि वर्स्ट में वर्स्ट कंडीशन में भी ताजमहल इस तरह से मतलब उन लोगों ने डिज़ाइन किया है कि वो फ्लड के साथ एडजस्ट हो जाता है। एंड तभी तो 1651-52 में बना था। सो इट इज़ मोर देन 450 ईयर्स और स्टिल वो अभी तक टिका हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो भाई पैसे बचाने की सोचते हैं, सो फिर रिजल्ट भी ऐसा ही मिलता है। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कभी भी मैंने अपनी लाइफ में फ्लड फेस नहीं किया, बट द थिंग इज़ दैट कि अगर अभी हम लोग कभी फ्लड वाली कंडीशन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट टू डू। पॉइंट नंबर 1,
collect your precious and personal requirement and take refuge to a safer place. ओके, स्पेशली टॉकिंग अबाउट लेडीज़, वो अपनी ज्वेलरीज, अपनी सब काम की चीज़ें लेंगे। वी जेंट्स में हम लोग अपना वॉलेट, मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, ये सब चीज़ें लेंगे। और कुछ प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स हो सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट बुक्स होगी, उसको हम लोग कलेक्ट करके सेफर जगह पे चले जाएंगे। बट मेरी मानो, स्टूडेंट कभी भी अपना बैग कैरी नहीं करेगा। रीज़न, भले ना डूबता है, डूबने दो। एनी हाउ, चलो। पुट वाटर, ड्राई ब्रेकफास्ट, कैंडल, लालटेन, मैच बॉक्स इन अ प्लास्टिक बॉक्स so that they not get wet and they should be kept with you। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप लोग अपने साथ एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लो, उसमें आप थोड़ा पानी की बॉटल्स ले सकते हो, क्योंकि आगे जाके आपको पानी मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। आप अपने साथ कुछ काजू, द्राक्ष, बादाम, ऐसे ड्राई ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो, इन केस इफ़ यू गेट हंग्री यू कैन कंज्यूम इट। वेल, इट माइट बी पॉसिबल डेट इन नियर फ्यूचर यू मे फेस पावर कट। बिजली नहीं होगी तो फॉर नाइट टाइम यू कैन कैरी आउट सम मैच बॉक्स एंड कैंडल एंड लैंटर्न ऑल्सो। एंड इन सबको आप एक प्लास्टिक बैग्स में ले लो ताकि ये ड्राई, ये गीले ना हो जाए, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, डू नॉट कीप द चिल्ड्रन हंग्री। सो आप अगर आपके पास में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी भूखा मत रहने दो, भूखे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द फ्लड रेसेड ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर। एक बार फ्लड चला जाता है तो भी आपको कुछ दिनों तक आपको बॉइल्ड पानी ही पीना है, क्योंकि जो पानी पाइपलाइन से भी आ रहा है, भले वो लोग कह रहे हैं साफ है, लेकिन इट माइट बी गेट पोल्यूटेड ऑल्सो। रेडियो, मोबाइल फ़ोन शुड बी केप्ट विद यू इनवेरिएबली। आपके पास रेडियो, मोबाइल फ़ोन होना ही चाहिए। एंड इवन उसको आप लोग फुली चार्ज भी रखो। अगर वो सेल से चलता है तो सेल अपने पास एक्स्ट्रा कैरी करो। एंड इफ़ यू हैव पावर बैंक विद यू, सोने पे सुहागा हो गया। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, बी अवेयर ऑफ स्नेक एंड यू मे कम टू ड्राई प्लेस। ओके, सो कीप अ बैम्बू स्टिक एंड टू ड्राइव देम अवे। सपोज करो कि आप नदी से बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए आप एक ट्री पे चढ़े हुए हो और नीचे आपने एक स्नेक देख लिया। सो डोंट वरी, ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्री की एक लकड़ी ले सकते हो और उस स्नेक को भगा सकते हो। इन ट्री से तभी उतरना जब आपको लगे कि स्नेक यहाँ से जा चुका है और बहुत दूर जा चुका है। ऐसा ना हो कि वो आपको देख के कर रहा हो। So, चलो आगे बढ़ते हैं। What not to do, हमें क्या नहीं करना है जब फ्लड आता है। सो डू नॉट ईट फूड प्रिपेयर फ्रॉम फ्लड वाटर। फ्लड का वाटर है, उसमें से खाना बना रहे हो, वेल वो नहीं चलेगा, वो आपको बीमार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट मूव आउट विदाउट कलेक्टिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूट्स एंड सिचुएशन बिफोर मूविंग टू अ सेफर प्लेस। मुझे अपने आसपास में एक जगह पर जाना है, लेकिन अब यू डोंट नो वहाँ पे कितनी बरसात आई हुई है, वहाँ पे पानी का क्या स्टेटस है, तो आप लोग ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बिना आप बाहर मत निकलो। ओके, नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू सी अबाउट द साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है? सो हियर यू कैन सी, देखो मैप के नीचे जो वाइट पैचेस है ना क्लाउड का, इस टाइप से साइक्लोन फॉर्म होता है। राइट नाउ यू कैन सी बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा क्लाउड्स हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि तूफान आने वाला है। ये तूफान तमिलनाडु में भी जा सकता है, आंध्र प्रदेश में भी आ सकता है, एंड इट कैन बी हिट इन उड़ीसा ऑल्सो। सो ये सारी इस टाइप की जो इमेजेस होती हैं वो हमको वेदर डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। जब तूफान आता है तो इस टाइप के, मतलब ये सी कोस्ट को अफेक्ट करता है एज यू नो, एंड इस टाइप से बहुत ही ज़ोर से हवा चलती है। एयर कैन बी 60 किलोमीटर पर आवर से लेकर 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। एंड इस तरह से तूफान आते हैं, पर्टिकुलर बहुत ज़ोर से हवा आती है एंड हैवी रेनफॉल भी होती है। तो चलो पहले अब साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, बट चलो शुरू कर देते हैं पहले। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस अ सडन स्ट्राइक इज मेड बाय सीवियर स्टॉर्म्स। These storms are known as a cyclone in the Indian subcontinent, hurricane and tornado in USA, and as typhoon along the coast of China and Japan. These several atmospheric storms created due to the unequal atmospheric pressure. Such storms or cyclone created devastation over the area over which they pass. The devastation effects are felt along the coast
ऑफ ईस्ट इंडिया एंड कच्छ सौराष्ट्र। पहली बात तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हॉट एयर और कोल्ड एयर का, ठीक है। सिंस कोल्ड एयर हमेशा हॉट एयर की तरफ ही जाती है, ठंडी हवा गर्म हवा की तरफ जाती है। एक्सपेरिमेंट करना है, जस्ट गो टू योर फ्रिज एंड फ्रिज का डोर ओपन करो, बताना मुझे फ्रिज से हवा बाहर निकलेगी या फिर फ्रिज के बाहर की हवा अंदर जाएगी। ऑफकोर्स हम फ्रिज खोलते हैं तो हवा ठंडी ठंडी बाहर आती है। सो ये प्रूव हो गया है कि कोल्ड एयर हमेशा हॉट एयर की तरफ जाएगी। ज़मीन पे वो हवा जब बहती है तो इट माइट पॉसिबल डे होगा तो वो हॉट होगी, नाइट होगा तो वो कोल्ड होगी। सेम वे अब वो हवा जब बहती है समुद्र के ऊपर से तो अगेन डे होगा तो हॉट होगी एंड नाइट होगी तो वो कोल्ड होगी। बट कभी कभी क्या होता है कि जो डे वाली हवा होती है ना वो ड्राई होती है एंड जो समुद्र वाली हवा होती है वो मॉइस्चर बेयरिंग होती है क्योंकि उसमें पानी का एलिमेंट होता है। तो ये हवाओं का जब आपस में जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इनका जो साइकिल है वो जब डिस्टर्ब होता है तो ये फॉर्म अ सर्कुलर पैटर्न, ओके। एंड ये सर्कुलर पैटर्न ही हम लोग इंडिया में इसे साइक्लोन कहते हैं। हरिकेन एंड टोर्नेडो यूएसए में कहा जाता है, जबकि टाइफून कहा जाता है चाइना एंड जापान में। एंड जहाँ से भी ये साइक्लोन जाता है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, पेड़ उखड़ जाना, घर टूट जाना, ये सब चीज़ें कॉमन है, ठीक है। सौराष्ट्र कच्छ में तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो चुका है। सो अगर आप कोई ऐसी जगह पे आ गए हो जहाँ पे बहुत हैवी साइक्लोन आया है तो आपको क्या करना चाहिए? वेल ये सब करना चाहिए। कीपिंग अ व्यू ऑन न्यूज़ बुलेटिन ऑन टीवी रेडियो और टू नो एन एंटिसिपेटेड टाइम ऑन कमिंग स्टॉर्म। देखो आप लोग न्यूज़ चैनल के या रेडियो के थ्रू हमेशा अपडेट रहो, वो लोग आपको बताएंगे कि आज ये नाम का तूफान आने वाला है। अम्फान तूफान अभी जस्ट रिसेंट में आया था एंड इट इज़ गोइंग टू स्ट्राइक दिस पर्टिकुलर सिटी, एक्सपेक्टेड टू स्ट्राइक। वो कभी भी कंफर्म नहीं बोलेंगे, मगर आप उसके अगर आसपास में हो तो आपको भी अलर्ट रहना है। दे विल से कि आज 4 o'clock से 4:30 के बीच में ये जो साइक्लोन है वो हमारे सी कोस्ट को हिट करेगा। 7 o'clock या 8 o'clock तक इसका डिवास्टेशन इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। सो इट इज़ पॉसिबल आप 3 से 9 के बीच में कोई सेफ जगह पहले से ढूंढ के रख लो, ओके। नंबर 2, दोज हु हैव द रेडियो शुड कीप एन एक्स्ट्रा बैटरी। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, रेडियो है तो एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करो ही करो। मोबाइल फोन शुड बी kept fully charged in advance. If you have the power bank instrument, it should be also charged fully in advance, ठीक है। आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, मे बी इलेक्ट्रिकल पोल्स गिर जाते हैं ऐसे साइक्लोन में, तो मोबाइल फ़ोन फुली चार्ज रखो एंड इवन पावर बैंक भी फुली चार्ज रखो। एंड जब भी वो इंसिडेंट फेस करो स्टॉप प्लेइंग, अवॉइड टू प्लेइंग गेम्स, क्योंकि मोबाइल फ़ोन गेम्स खेल के ज़्यादा उसकी बैटरी यूज़ होती है। सो मोबाइल फ़ोन को उतना यूज़ करो जितनी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आगे पता नहीं कब लाइट आएगी एंड कब आपको थिंग्स नॉर्मल होंगी। नाउ पॉइंट नंबर 4, लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन वार्निंग ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो एंड इम्प्लीमेंट देम। आपको ब्रॉडकास्ट वाले जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, अच्छे से उसे सुनना है। स्टे अवे फ्रॉम द र्यूमर्स, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तूफान बंद हो गया चलो बाहर चलते हैं, अब तो नहीं आएगा, अरे वो उस साइड टर्न हो गया, नहीं। ये बात अगर न्यूज़ चैनल वाले या फिर रेडियो वाले कहते हैं तो ही आपको माननी है। स्टोर एडिशनल फूड, ड्राई ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंकिंग वाटर एज पर द नीड, ठीक है। आपको ड्राई फ्रूट्स, एक्स्ट्रा फूड, एडिशनल फूड कैरी कर सकते हो। एनी वन वाटर बॉटल्स ऑल्सो यू कैन कैरी विद यू। थर्ड लास्ट पॉइंट, कीप प्रोविजन ऑफ फूड एंड मेडिसिन नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल। अगर आपको कोई बीमारी है तो यू कैन कैरी योर मेडिसिन विद यू, ओके। इफ़ रेस्क्यू टीम टेल्स यू टू वैकेट योर होम, कोऑपरेट विद देम, ठीक है। अगर आपको रेस्क्यू टीम बचाने आती है इन केस, और अगर आप कोई साइक्लोन वाली कंडीशन में फंस गए हो तो आपको उनको हेल्प करना चाहिए, ओके। दे आर ओनली फॉर यू ऑल्सो। जैसे हमने देखा था ना कि अभी फ्लड आया था तो वो बोट्स लेके आए थे हमारे जवान, ठीक है। सो अगर हमको कह रहे हैं कि यहाँ से आप निकल जाओ तो कोऑपरेट करो उनको। नाउ लास्ट पॉइंट, यूज़ प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ओके। ऐसे टाइम पे आपको पानी बिल्कुल साफ पीना है। अगर आपने पानी गलत पिया तो यू माई गेट फॉल सिक। और क्या करना चाहिए, इफ़ यू हैव टेकन शेल्टर इन द शेल्टर होम क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय एनी NGO,
देन फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन एंड डू नॉट लीव द प्रीमाइसिस विदाउट देयर इंस्ट्रक्शन। सो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की एजेंसी आके आपको सेव करती है और वो आपको कोई पर्टिकुलरली शेल्टर आपके लिए बनाती है, तो आपको वो शेल्टर या फिर वो जो प्रीमाइसिस है, आपको विदाउट देयर इंस्ट्रक्शन आपको वो जगह छोड़नी नहीं चाहिए। डू नॉट कीप योर डोमेस्टिक एनिमल टाइड अप टू देयर पोस्ट एंड इफ़ दे आर फ्री दे कैन डिफेंड देमसेल्फ इन अ बेटर वे। अपने एनिमल्स को हो सकता है तो आप लोग थोड़ी सी देर के लिए फ्री कर दो, मतलब उनको कोई हम लोग नहीं खूंटे से बांध के रखते हैं डोरी से, तो वो फ्री कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो बंधे रह जाते हैं, उनके ऊपर कुछ गिर जाता है, उनको कुछ लग जाती है। सो उनको ओपन कर दिया जाए ताकि वो अपने आप को अच्छे से सेव कर पाएँ। वाइल देयर इज अ साइक्लोन, आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है? वेल, डू नॉट पे अटेंशन ऑन द गॉसिप रूमर्स एक्सपेक्ट फॉर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द वेदर डिपार्टमेंट एंड रेडियो। कोई किसी की भी बात पे विश्वास नहीं करना है, सिर्फ आपको विश्वास करना है वेदर डिपार्टमेंट एंड रेडियो पे। इफ द एटमोसफियर काम डाउन सडनली, रेन स्टॉप्स, wind becomes stand and still, even then do not go in the open area, wind or rainfall may strike suddenly। ठीक है, तूफान के बीच में जो होता है स्टॉर्म की आई होती है, बीच में आपको बहुत ही एक ब्लैंक पार्ट दिखेगा जहाँ पे बिल्कुल क्लाउड नहीं होंगे। एंड अगर मान लो अब तूफान आता है तो वो अगर वो सेंटर आई ऑफ द स्टॉर्म अगर आपके एरिया पे आती है तो आपको ऐसा लगेगा कि तूफान ख़त्म हो गया, अभी तक तो बहुत ज़ोरदार हवा चल रही थी और ऑल ऑफ सडन सब कुछ शांत हो गया। तो आपको 15-20 मिनट और वेट करना है, फिर से तूफान शुरू हो सकता है। ओके, सो डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक पोल्स, लूज वायर्स एंड स्टे अवे फ्रॉम देम। आपको कोई इलेक्ट्रिकल पोल्स के आसपास खड़े नहीं रहना है क्योंकि वो आप पे गिर सकता है। और कोई जो वायर्स होते हैं हमारे ऊपर से जो केबल्स लगते हैं उनसे भी हमको दूर रहना चाहिए, क्या पता कब कौन सी केबल में करंट हो और हमको लग जाए। डू नॉट टेक शेल्टर नियर द बिगर होल्डिंग और लार्जर ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रहना भी सेफ नहीं है क्योंकि कब कौन सा पेड़ गिर जाए वी ऑल्सो डोंट नो। इवन बड़े बड़े बोर्ड्स होते हैं, होल्डिंग्स होते हैं। ओके, so friend, this is the ending of this part. This part we covered flood and cyclone. आज हमने flood and cyclone देखा। नेक्स्ट टाइम हम लोग अर्थक्वेक भी देखेंगे और एक और चीज़ भी देखेंगे। इवन आई ऑल्सो डोंट नो, सिंस मैंने अभी उसके स्क्रीन शॉट्स अभी तक लिए नहीं है। सो आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड विद दिस नोट आई एम टेकिंग योर लीव। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।